Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are starting and continuing with our CSAT series. So the topic that we are taking up is average. So firstly, we have first few formulas and what are basic themes related to average. So first we'll be covering them up and then we'll be taking all the previous questions that have been asked so far related to the concept of average. So the first one is related to when a particular units or a figure is added or removed from the total quantities or the total sample, then how does the average changes? So here it is giving us the formula also, but we can solve the questions apart from these formulas using again our simple logic and common sense as well. So we'll be taking both the things when we'll be solving the questions together. So this is like when the quantity is removed. If the total quantities are n, suppose they are 10 in number and their average is equal to x. So if one of the quantity is removed, so we can use this formula. So n is for total number of quantities, x is the old average and y is the new average. If all these three values are given to us, then we can use this formula. And if quantity is added, then we'll be using this formula. So here it is x minus y, here it is y minus x. So that is the thing that we need to remember. So here we have the question related to it. So here, for example, I have solved it through both the methods using formula and using the common sense, using the simple formula of average. So here 24 students, so n will become 24 and there is one class teacher. So 24 plus 1, n would be 25 and average given is 16 years. So if class teacher's age is supposed, for example, if this is excluded, then the average age it reduces by 1 year. So it means new average would be 15 years. So here we simply place it in this formula and we'll get the age of the teacher. That would be 40 years. Now, when it comes to suppose we don't remember or we're not able to recall the formula in the examination. So simply through the formula of the average, for example, the formula of averages, whatever are the values given to us, will take the sum of them and divide it by the number of terms uh, in the denominator, so we'll get the average. So here the sum of students plus teachers age is given, so total number would be 25, average is 16 years. So through this we get the sum of the ages of students and teachers together, that would be 400. Now when we subtract the sum of ages minus the teacher's age, because here it is stated that we are excluding the age of the teacher, so that is why I have subtracted the age of teacher. This is again using same average formula itself. And now we'll take it 24 because teacher's age has been excluded. So instead of 25, it will become 24. And the average would be 15 because it is stated the average now reduces by 1 year. So 16 minus 1 would be 15. And we'll simply place the figures. So sum of ages ये हमें यहाँ से मिल गया था, that would be 400 minus teacher's age by 24 and we'll get the TA, that is teacher's age, would be 40 years through this. So the answer is coming out to be same. So it means we can use this methodology as well. Now another question related to the same concept is the average age of 30 children in class is 9 years and teacher's age it is included and now the average becomes 10 years. So teacher's age हमें यहाँ पे same वही निकालना है. तो total children 30 given average is 9. So simply put it in the formula of average. Sum of ages of children divided by 30 equal to 9. Sum of ages of children हमें मिल जाएगा, that would be 270. And now again it is stating कि अगर हम teachers के age को include कर देंगे तो sum of children plus teachers age would be now divided by 31 because teacher add हो गई है एक. तो इक्वल टू 10 जो हमें न्यू एवरेज दे रखे हैं, सिंपली हमें टी निकालना है, तो विल गेट इट एज 40 years. ना यहाँ पे भी ये फॉर्मूला है, ये याद करने पड़ेंगे. देयर इज नो अदर वे आउट फॉर दिस. सो ये एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n+1/2, तो ये यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. Now, what is the average of odd numbers from 1 to 40? So, formula में लगाया n+1/2, so it would be 20. What is the average of squares of the natural numbers? So यहाँ पे भी formula लगेगा n+1, 2, n+1/6. So this is squares के लिए. Squares of natural numbers अगर हमें दे रखे हैं, तो this would be the formula. यहाँ से we'll get it 581 as the average. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूलाज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
एक एक तो सिंपल जो है कॉमन सेंस वाला यहाँ पे यूज होता है हमेशा एवरेज में, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखी हैं, सपोज टोटल टर्म्स हमारे पास 5 है, तो हमेशा जो मिडिल में होगा नंबर वो एवरेज होगा। पर इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वी आर अरेंजिंग इट इन इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड देन जो मिडिल टर्म होगी दैट वुड बी द एवरेज। एंड इन केस ऑफ even numbers it would be the sum of, or we can say the average of middle two numbers। तो यहाँ पे जैसे even numbers हैं, 6 नंबर है टोटल, तो दिस इज 6 इज even। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट 6 नंबर्स लिए हैं, तो 3 + 4/2 इसका एवरेज जो होगा इन सब का एवरेज इट वुड बी 3.5। एंड ये बाकी फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम एज वेल, या आप लिख सकते हो इनको कहीं। सो जैसे यहाँ लिखा है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 7 इज ऑड, तो एवरेज होगा द मिडिल नंबर विच इज 6। Now average of first 31 consecutive even numbers. So n plus 1 is simply the formula. n 31 है तो 31 + 1 it would be 32। तो यहाँ पे consecutive वाला चीज है, ये जो ध्यान में रखने वाला एस्पेक्ट है। Now ज्योमेट्रिक एवरेज में जब हम बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी हम इसको बोलते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का, अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई विद जो भी हमें टर्म्स दे रखी है, एंड स्क्वायर रूट में होगा हमेशा जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ज्योमेट्रिक मीन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हेल्प कर सकते हैं सॉल्व करने में, जहां पे वी सी की एवरेज ऑफ रेशियो सच एज एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हमें निकालना है क्वेश्चन में, या फिर एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। अगर हमें सपोज 2 टाइम पीरियड का एवरेज फिगर्स दे रखी है, तो हमें टोटल निकालना है कि दोनों को अगर हम असेस करते हैं तो कितना एक्चुअल सेंस में परसेंटेज इंक्रीज हुई है, बट वहाँ एवरेज परसेंटेज होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, जैसे यहाँ दे रखा है 2 टाइम पीरियड हो गए, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट्स ऑफ 16%। एक साल में 16% है, नेक्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई बाय 4%। अब हमें निकालना है पूरा एवरेज इंक्रीज कितना हुआ है 2 सालों में, तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला हो गया, दो फिगर्स हैं 16 × 4 और स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, तो 8% वुड बी द एवरेज इंक्रीज दोनों साल का मिला के। नाउ हार्मोनिक मीन की जब हम बात करते हैं, हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक एवरेज, तो इसका फॉर्मूला ये है, एंड ये हमें हेल्प करेगा इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हिच आर फाइंडिंग related to finding out the average speed of vehicle या average production per day। So for example this question, so man runs 1 kilometer, ये distance हो गया at the speed of 15 km/h। Another 1 kilometer he walks at speed of 5 km/h। So we need to find out the average speed in covering these 2 kilometers। तो यहाँ पे क्या important है, दोनों जो distance है वो same है। आगे सॉल्व करेंगे कि जब डिस्टेंस भी अलग होगा तब भी हम कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, बट दिस इज फॉर सेम डिस्टेंस विच इज बीइंग कवर्ड। सो n बिकम्स 2, बिकॉज 2 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं, तो हार्मोनिक मीन का सिंपली फॉर्मूला हमने डाला 1/n है, और ये जो हमें स्पीड दे रखी है, तो x1 यहाँ पे 15 हो गया, x2 हो गया 5 km/h। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट दिस एज 7.5 km/h वुड बी द एवरेज स्पीड फॉर 2 kilometers। Now, again, another formula. This is certain distance is being covered at a speed of x km/h. Same distance यहाँ पे भी same distance is covered at speed of y km/h। तो अगर इसको हम फॉर्मूला से करते हैं तो it would be 2xy upon x plus y। तो x and y स्पीड है। सो यहाँ पे वी हैव अगेन फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी लिखा है, तो स्पीड ऑफ 15 km/h, एंड जो रिमेनिंग हाफ हो गया, तो मतलब हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, तो 12 km/h सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी की जो स्पीड है। फाइंड आउट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। सो सिंपली फॉर्मूला है ये 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का यहाँ पे, तो विल गेट इट एज 13.33 km/h एवरेज स्पीड। नो अब अगर हमारे पास अगेन 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, अभी तक हमने देखा कि 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, या 1 किलोमीटर इतना है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर इतनी स्पीड रही, तो एवरेज निकालना है। अगर हमारे पास 3 पार्ट्स में है, तो इट वुड बी सिंपली 3, पहले हमने 2xy देखा था, 2 था, तो अब 3 में तो 3 हो जाएगा, 3x z y, और ये 3
तीन वैल्यूज है तो तीन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन सबको हमें ऐड करना है इन डिनोमिनेटर। सो सिंपली यही फॉर्मूला में डाल दिया, एक्स ये है, ये तीनों स्पीड्स हो गई 120, 140 एंड 80 किलोमीटर पर आवर्स। और जो यहाँ डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो कि फर्स्ट 160 किलोमीटर, अनदर 160 किलोमीटर, लास्ट 160 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब डिस्टेंस सेम है, इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं चीजों को। तो दिस विल बी द एवरेज स्पीड। Now this is for different distances which are being covered. तो यहाँ पे भी सिंपली अगर फॉर्मूला याद नहीं करना है तो इसको भी हम देखेंगे कैसे हम जनरल जो बेसिक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड उसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। तो पर्सन इज कवरिंग ए किलोमीटर्स एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी किलोमीटर है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं एट द स्पीड ऑफ जेड किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे हमें निकालनी है पूरी जर्नी की। तो ऊपर हो गया टोटल डिस्टेंस। तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइम यहाँ पे वैल्यूज आप इंटरचेंज करके बोल सकते हो। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो स्पीड वुड बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, दे कैन बी डिफरेंट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का क्या होगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया जैसे ए अपॉन एक्स, तो यहाँ पे ये ए अपॉन एक्स ये टाइम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो टोटल टाइम आ गया ऊपर टोटल डिस्टेंस आ गया। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड, बट यहाँ पे हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं इसके थ्रू। सो इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, पर्सन इज कवरिंग 9 किलोमीटर, दिस इज द स्पीड, 25 किलोमीटर के लिए स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर्स, फॉर 30 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस द स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो एवरेज निकालना है, आप सिंपली फॉर्मूला में डाला, विल गेट इट 64/11 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, दिस इज टोटल टाइम दैट इज बीइंग टेकन। नाउ हेयर, अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में हमें नहीं दे रखा है, सपोज डिस्टेंस है, दैट इज नॉट गिवन अस इन टू अस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल एथ पार्ट, या फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमें दे रखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला वुड बी दिस। सो यहाँ पे सिंपली वन जो वो यही दिखा रहा है कि सारे जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्ट, सेकेंड हाफ के लिए हम बोल रहे हैं कि 1/2 होगा, या फिर बाकी जितना बच गया वो दैट वुड बी जीरो, क्योंकि अगेन हमने 2/3 लिया था फ्रैक्शन। सो इसमें हम बोलेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये टोटल टाइम ही कैलकुलेट हम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। जो अगर हमें पार्ट्स के फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन में फिगर्स दे रखे हैं तो जैसे एग्जांपल उससे और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे बोल रहा है फर्स्ट 1/4 ऑफ जो डिस्टेंस है दैट इज 8 किलोमीटर, नेक्स्ट 3/5 ऑफ डिस्टेंस स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर्स, और जो बाकी डिस्टेंस बच गया, बाकी डिस्टेंस वुड बी 1 माइनस 1/4 प्लस 3/5। तो बच गया जो दैट वुड बी 320 पार्ट्स बच गए ऑफ द डिस्टेंस। तो ये पूरा ऊपर तो 1 आ गया, अब नीचे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल टाइम। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 1/4 बचेगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 8 इज द स्पीड, 8 स्पीड है, 1/4 इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव अस टाइम। तो वो सिंपली इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो विल गेट इट एज द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी। नाउ सिमिलरली यहाँ पे हमें सपोज ये परसेंटेज के फॉर्म में दे दे, तो हम इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 50% को हम हाफ भी बोल सकते हैं। तो सिमिलर फॉर्मूला वही है, बट यहाँ पे ये परसेंटेज में, तो इसको अब रेशियो में कन्वर्ट करके यू कैन पुट द फिगर्स इन द फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक क्लियर है हमें सारे क्वेश्चंस जो हमने कवर किए। तो अब से क्वेश्चंस की बात करते हैं, all related to average. So here, for example, this question is saying कि student has a student on her first 3 tests received average score of n points. If she exceeds her previous average score by 20 points on her fourth test, तो fourth test में marks कितने आए हैं उसका, एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4, अच्छा फोर्थ सारे टेस्ट का मतलब हमें एवरेज स्कोर निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 टेस्ट के लिए हमें एवरेज दे रखी है n, तो इस सिंपली इसको फॉर्मूला फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इट वुड बी पहले 3 टेस्ट में जितना भी स्कोर आया उनका सम करेंगे,
डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 टेस्ट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज हमें n पॉइंट्स दे रखा है, तो इक्वल टू n। नाउ ये सेकंड सेंटेंस बोल रहा है इफ शी एक्सीड द प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20, मतलब न्यू एवरेज होगा n प्लस 20, तो यहाँ लिखा इक्वल टू n प्लस 20 फॉर हर फोर्थ टेस्ट। तो सिंपली फोर्थ टेस्ट के लिए ये वैल्यू है, तो स्कोर इन फोर्थ टेस्ट मिल गया हमें n प्लस 20। तो पूरा एवरेज निकालना है, चारों टेस्ट में कितना एवरेज स्कोर आ रहा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले सिंपली कि सम निकालेंगे जितना भी स्कोर आ रहा है चारों टेस्ट में। तो ऊपर हमें मिल गया 3 टेस्ट के लिए n×3, यहाँ पे डायरेक्टली 3n लिख दिया मैंने, और फोर्थ टेस्ट का तो n प्लस 20 हमें स्कोर था पहले गिवन, डिवाइड बाय 4 करेंगे क्योंकि 4 टेस्ट के लिए हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n+5 मिलेगा। तो आंसर वुड बी दिस, फोर्थ ऑप्शन। सो दिस इज द एवरेज स्कोर इन द 4 टेस्ट। अब यहाँ पे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सो यहाँ पे आंसर मैच हुआ नहीं, तो प्रेरणा यू कैन लुक इनटू दिस, क्योंकि ग्राफ के अगर हम फिगर्स को डिसाइफर करते हैं तो मेरे हिसाब से तो दिस इज 500। तो फॉलोइंग ग्राफ शोज एवरेज प्रॉफिट में ही हमें फिगर्स दे रखी हैं। दो फ्रूट सेलर्स हैं ए एंड बी, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ्स दे रखे हैं, एंड फिगर्स इन थाउजेंड्स रुपीज पर ईयर। तो 1995 से 2000 तक की फिगर्स हैं। सो क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन ईयर 1998। तो मींस दिस इज द ईयर जहाँ की हमें फिगर्स और डिफरेंस निकालना है। एवरेज फिगर्स हमें ऑलरेडी दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट की जो हम बात कर रहे हैं, तो बी और ए का हम माइनस करेंगे। तो बी के लिए जो ट्रायंगल शेप है, तो यहाँ पे 4, जैसे 4000 वुड बी दी द एवरेज प्रॉफिट, माइनस 3500 होना चाहिए मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू, क्योंकि ये मिडिल में इन दोनों के बीच में, और 1 1 यूनिट का यहाँ डिफरेंस है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट शुड बी 500 डिफरेंस, बट ये ऑप्शन में दे नहीं रखा है। या तो फिर 500 या फिर ये 600 हो सकता है, क्लोज, क्योंकि क्लोजेस्ट यही है इसके। तो यू कैन वेरीफाई द आंसर एंड। 600 होगा इसमें। हाँ 600 होगा ना। क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना कि बीच में हो सकता है वो ऊपर वाले में हो। हाँ थोड़ा सा इसलिए वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए 600 हो सकता है। इसी से रिलेटेड है, इन विच ईयर इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम। तो 1996 में सेम, जहाँ पे क्लैश या फिर इंटरसेक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 1996 में सेम प्रॉफिट है। और थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999। तो 2000 में कितना ज्यादा हुआ, तो यहाँ से यहाँ कंपेयर हमें करना है, तो डिफरेंस वुड भी देख सकते हैं, माइनस करेंगे तो 2000 आएगा। यहाँ पे 4000 था, इधर 6000 है, तो डिफरेंस इज 2000 एवरेज प्रॉफिट। सो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। It is showing the marks obtained by two students, different subjects. These are the subjects. स्टूडेंट ए, और मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं वो भी दे रखा है। दिस इज फॉर स्टूडेंट बी, तो एक तरीके से मार्कशीट हम बोल सकते हैं। सो निकालना है हमें द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कितना है। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के। तो टोटल स्कोर जितना भी है स्टूडेंट ए का हर एक सब्जेक्ट में, उसका 210 है। मैक्सिमम मार्क्स का टोटल है 350, तो 350 में से द पर्सन इज स्कोरिंग 210, एंड सिमिलरली बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सेपरेटली एवरेज मार्क्स ऑफ ए कितना होगा, टोटल 210 को डिवाइड करेंगे विद कितना मैक्सिमम वो स्कोर कर सकता है, दैट इज 350 इंटू 100, तो दैट इज 60% ए का आया है और 60% ही बी का आया है, तो इसलिए डिफरेंस 0 हो गया। तो 0 इज द आंसर डी। मीन एग्रीगेट, क्योंकि उसने बोला है मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स में कितना डिफरेंस है, तो इसलिए पहले हमने मीन या एवरेज कैलकुलेट किया ना। यहाँ पे ग्राफ बोल रहा है the earnings of A and B over the period 2000 से लेके 2010 तक। सो ये ऊपर वाला ग्राफ A का है, नीचे वाला B का ग्राफ है, मीन अर्निंग्स है। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमारे लिए। तो पहला बोल रहा है ऑन द एवरेज A earned मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यही ट्रू इसलिए होगा क्योंकि ए का जो है
अर्निंग्स वो कंपैरेटिवली या फिर जितना जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये मेजर पोर्शन है, या प्रोपोर्शनेटली दिस इज द लार्जर सेक्शन। यहाँ तो दोनों का हम बोल सकते हैं इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ए का ज्यादा है, तो एवरेज भी अगर हम निकाल रहे हैं तो ए की एवरेज बी से ज्यादा आएगी। बाकी स्टेटमेंट्स एक बार रीड कर लेते हैं। दूसरा बोल रहा है ऑन दी एवरेज बी अर्न मोर देन ए ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो बी नहीं कर सकते क्योंकि ए का ऊपर हाफ ऑफ वाला कर्व है, तो वैल्यूज उसकी ज्यादा होंगी, तो इसलिए एवरेज उसकी ज्यादा आएगी। थर्ड बोल रहा है अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी दे वर इक्वल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इक्वल हम नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड अर्निंग्स ऑफ ए वर लेस एज कंपेयर टू बी ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो मेरे हिसाब से ए शुड बी करेक्ट। औशिक आप एक बार इसको वेरीफाई कर दो कि आंसर ए ही होना चाहिए, आई थिंक। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स दे रखा है इज रुपीज 10,000। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5 है, तो सम ऑफ इनकम 5 लोगों का एवरेज इज 10,000। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द पर्सन इन द सेम फैमिली। तो मेंबर्स ऑफ फैमिली सेम रहेंगे 5, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है एक इंसान की बाय रुपीज 1,20,000 पर ईयर। सो 1 ईयर इंक्रीज 1,20,000 है, हमें यहाँ पे मंथली बेसिस पे डेटा दे रखा है, तो मंथली बेसिस पे अगर हम निकालते हैं तो 10,000 इंक्रीज हो रही है हर महीने उसकी इनकम। तो न्यू एवरेज क्या होगी, पहले हमने यहाँ पे आ गया सम ऑफ 5 पीपल जो ओल्ड एवरेज से आया, 5 × 10,000 तो ये 50,000, प्लस जो न्यू इंक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीमेंटल इनकम उसकी इंक्रीज हो रही है हर महीने, वो 10,000 है। लोग उतने ही हैं 5, तो इसलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यू एवरेज इनकम वुड बी 12,000। So answer becomes A option, 12,000 rupees। बस ये जो क्वेश्चंस में सारा डेटा दे रखा है उसका यूज है, तो उसको हम जैसे इक्वेशन फॉर्म में उसको लिखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन हमें दे रखा है 50 kg, तो इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, सम ऑफ वेट्स ऑफ 9 पीपल डिवाइडेड बाय 9 विल बी 50। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 × 9 450 kgs। सो एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन हमें दे रखा है इज 45 kg, तो यहाँ लिख दिया है फर्स्ट 5 का ग्रुप का 45 kg इज द एवरेज, एंड एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5, तो यहाँ पे 5 दो बार इंक्लूड हो रहा है इसमें, तो लास्ट 5 का 55 kg एवरेज वेट है। तो हमें वेट निकालना है फिफ्थ पर्सन का कितना एक्चुअल वेट है। सो यहाँ इसको अगर हम इस वाले डेटा को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी, टोटल वेट ऑफ फर्स्ट 5, टोटल वेट ऑफ लास्ट 5 का सम हमें मिल जाएगा यहाँ पे, दिस वुड बी 225, या लास्ट 5 का 275। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ वेट ऑफ 9 हमें जो सबसे पहली इक्वेशन थी उससे हमें 450 मिल गया था। अब इसको हम लिखते हैं ये फर्स्ट 5 का वेट है, फिर 5 लोगों का हो गया, हमें टोटल 9 दे रखे हैं, तो 6 पर्सन 7th पर्सन 8th पर्सन 9th पर्सन का वेट एवरेज करके ऐड करके विल हम इसी इक्वेशन को ब्रेक करके एक तरीके से लिख रहे हैं, इट वुड बी 450 kgs। और हमें यहाँ पे फिर से सेम रिपीट करके तो हमें 6th 7th 8th और 9th पर्सन का जितना भी वेट है उसका सम मिल जाएगा, दैट वुड बी 225। और ऊपर जो इक्वेशन थी जैसे लास्ट 5 वाली, यहाँ पे फिगर आई है हमारे पास 275, तो लास्ट 5 का तो फिफ्थ पर्सन इंक्लूडेड है, तो 5 6 7 8 9th पर्सन का वेट ऐड करके हमें 275 मिला। इस वाली इक्वेशन से हमें 6 7 8 9th पर्सन का वेट मिल गया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और तो बचा फिफ्थ पर्सन। तो सब्ट्रैक्ट करके इन दो वैल्यूज को विल गेट द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन दैट इज 50 kgs। तो आंसर वुड बी है थर्ड ऑप्शन 50 kgs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर 13 2 डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखा है, 2 डिजिट है, कॉन्जिक्यूटिव है और ऑड नंबर्स हैं। सो इफ 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5, तो पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको अगर हम लिखें तो ऑड नंबर बोला है, तो सपोज मिडिल नंबर इज, या मतलब जो एवरेज होगा क्योंकि ऑड है, तो एन सपोज हमने कर लिया कि ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो आगे वाले नंबर्स अगर हम लिखेंगे क्योंकि ऑड है तो इसलिए n+2 हम करेंगे, n+1 नहीं करेंगे। और कॉन्जिक्यूटिव उसने बोला है, तो सपोज जैसे एवरेज हमें दे रखा है 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स, तो 5 नंबर्स हैं। ऊपर जब हम फॉर्मूलाज हम कवर कर रहे थे तो हमने देखा था अगर ऑड नंबर्स दे रखे इन द सेंस की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो मिडिल टर्म जो होगी वो एवरेज होगी, तो इसलिए एन वुड बी 39, तो हमें पता चल गया कि मिडिल नंबर इज एवरेज नंबर इज 39, तो इससे हम बाकी नंबर्स निकाल सकते हैं।
तो फर्स्ट 5 नंबर्स हमें मिल जाएंगे इसके थ्रू। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर्स जो हमें दे रखे हैं इन द फिगर। तो ये यहाँ से अगर हमें फर्स्ट 5 आ गए तो बाकी हम 13 भी निकाल सकते हैं क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और ऑड है। तो इसका सम हमें पता है, एवरेज हमें पता है, तो इसका सम निकाल के सिंपली फॉर्मूला में डाल देंगे, विल गेट दी टोटल जो एवरेज है 13 नंबर्स का 47 आएगा। तो बस इसमें ये डिराइव करना पड़ेगा, इसमें जो बेसिक्स हैं 2-3 चीजें ये हमारे लाइक माइंड में होनी चाहिए। ऑड है कि इवन है और कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तभी हम ये चीज पॉसिबल हो सकती है, वरना कोई और मेथड होगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज रेनफॉल की बात हो रही है इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 डेज। 0.4 इंच रिकॉर्ड हुआ, तो ये लिख लिया हमने, एवरेज रेन फर्स्ट 4 डेज में इतना रहा। रेनफॉल ऑन द नेक्स्ट 2 डेज रेशियो में दे रखा है, नेक्स्ट 2 डेज के लिए, सॉरी लास्ट 2 डेज, मतलब कि यहाँ पे 4 डेज, तो टोटल 6 डेज की बात हम कर रहे हैं। तो लास्ट 2 डेज में रेशियो 4:3। एवरेज ऑफ 6 डेज वॉज दिस मच, तो 0.5 इंचेस। व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन फिफ्थ डे। तो हमें निकालना है कितने इंचेस ऑफ रेनफॉल फिफ्थ डे पे हुई। सो यहाँ अगर हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग द गिवन डेटा, तो सम ऑफ रेन इन द फर्स्ट 4 डेज इज इक्वल टू 1.6 इंचेस। कैसे निकाला, ये एवरेज था तो 4 इंटू 0.4 निकालेंगे तो 1.6 आएगा। सम ऑफ द रेन इन द 6 डेज, यहाँ पे भी हमें एवरेज दे रखा है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 वुड गिव अस द सम ऑफ रेनफॉल इन 6 डेज, दैट वुड बी 3। नाउ हमें अब निकालना है फर्स्ट 4 डेज, और फिफ्थ और सिक्स का हमें दे रखा है एवरेज जो है वो 3 है, ये ऊपर से जो आया 6 डेज का। नाउ ये लास्ट के 2 दिन जो है हमें रेशियो में दे रखा है, तो इसलिए इसको हम सपोज करेंगे कि 4x और ये 3x, मतलब पार्ट्स हो गया ये। तो इसलिए यहाँ 4x और 3x लिखा है फिफ्थ और सिक्स डे के लिए, और फर्स्ट 4 का हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है इस इक्वेशन से, इक्वल टू 3 है, तो सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगी हमारे पास 0.2, और हमें फिफ्थ डे की रेनफॉल निकालनी है, तो फिफ्थ डे का 4x है, तो 4 इंटू x की वैल्यू 0.2 जो हमें मिली, दैट वुड बी 0.8 इंचेस। तो 0.8 इंचेस वुड बी दी राइट आंसर। तो सिंपली बस एक ही फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। नाउ अगेन ग्राफिकल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज कि एवरेज आर्ली अर्निंग्स पर ईयर, ईयर को डिनोट किया है ई से, और सॉरी अर्निंग्स को बोला है ई, ऑफ द वर्कर्स इन अ फर्म आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर्स ए एंड बी। सो दिस इज फॉर अगेन फॉर्म ए, एंड ये फॉर्म बी के लिए हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस में ऑप्शंस दे रखे हैं फ्रॉम द फिगर, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ग्राफिकली इस चीज को करेक्ट सिग्निफाई कर रहा है। तो ए बोल रहा है वैल्यूज ऑफ ई आर डिफरेंट। तो देखो कि यहाँ से भी 20 से स्टार्ट हो रही है, इधर भी 20 से स्टार्ट हो रही है। स्लोप भी अगर हम देखते तो सेम है यहाँ पे। जैसे स्लोप कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, लाइक 20 और 25, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 ईयर, तो यहाँ पे स्लोप 5 आएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ भी करते हैं तो ये इसका मिडिल है, तो 20 और ये 25 डिवाइड बाय, अगेन यहाँ पे भी 1 ईयर का गैप है, तो स्लोप सेम आ रही है, तो इसलिए सी वुड बी द राइट ऑप्शन। स्लोप्स ऑफ ग्राफ्स दे आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स गिवन टू बी 40। तो सिंपली इक्वेशन में लिख दिया इसको, इट वाज फाउंड लेटर की जो मार्क्स है वो 1 स्टूडेंट्स दैट वर 53, बट मिसरेड करके उसको 83 लिखा है। तो इसमें सिंपली हमें करेक्ट मीन निकालना है। तो सम हमें 100 स्टूडेंट्स का मिल गया। अब इसमें जो था जो राइट वैल्यू है वो 53 है, जो मिसरेड है वो 83, तो जो गलत है उसको हम माइनस कर देंगे, और जो एक्चुअली हमें ऐड करनी है वो होगी करेक्ट वैल्यू। तो ऐड 53 इन दिस, हमें न्यू सम मिल जाएगा। न्यू और करेक्टेड सम वुड बी 4030, और फिर न्यू एवरेज उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स थे। तो करेक्ट एवरेज वुड बी 40.3, ऑप्शन 4। नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। तो ये पेपर है, इसको 3 पीसेस में ऐसे डिवाइड करके कट कर दिया। लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस दे रखा है इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। तो इसको ऐसे लिख दिया, फर्स्ट का जो लेंथ है ऑफ ए पार्ट इज 3 ऑड प्राइम नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 3। लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ द थर्ड। तो मतलब फर्स्ट की लेंथ
प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड पीस, तो LC डिवाइडेड बाय 3, इसको ऐसे सिंपली लिख दिया। एंड पी जो लेंथ है थर्ड पीस का, दैट इज एज लॉन्ग एज द अदर टू पीसेस टुगेदर, तो मतलब लेंथ ऑफ A प्लस लेंथ ऑफ B वुड गिव अस द लेंथ ऑफ C विच इज द थर्ड पीस। सो हमें निकालना है लेंथ ऑफ ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर क्या है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसमें अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट में क्या हो सकते हैं, 3 से अगर हम देखते हैं 3, 5, 7, 9, तो ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं जो सिंगल डिजिट में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसके अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशंस बन सकते 9 हैं। नहीं होगा ना प्राइम नंबर इसमें, 3, 5, 7 ही रहेगा सिर्फ। क्यों 9 इज, अच्छा हाँ प्राइम नंबर्स, ठीक है। हाँ तो 3, 5, 7 ही रहेगा, तो 3, 5, 7 का कॉम्बिनेशन, पहले यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लेंथ ऑफ B से यहाँ से हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ C जैसे दे रखा है, लेंथ ऑफ A प्लस लेंथ ऑफ B, तो यहाँ पे LC की जगह ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे ये है गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा कि लेंथ ऑफ B जो है दैट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ A। सो इससे हम यहाँ पे इस जो फाइनल फॉर्मूला है इसमें अगर हम लेंथ ऑफ B डाल देंगे और लेंथ ऑफ C, तो हमें टोटल मिल जाएगा कि जो लेंथ है ओरिजिनल शीट का दैट इज 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ A। सो इसमें अगर हम 3, 5, 7 ये वाली वैल्यूज हमें मिली गई हैं, तो इससे हम कैलकुलेट करके आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। बस मेन चीज यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि ये इसको इतना ये सिंपली हो गया, तो हमें बस लेंथ ऑफ A चाहिए। लेंथ ऑफ A ये हमें फॉर्मूला दे ही रखा है, 3, 5, 7 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल टर्न आउट टू बी 15 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, मतलब 2 चिल्ड्रन है 2 पेरेंट्स, तो 4 मेंबर्स हो जाएंगे। तो एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है एंड देयर मदर, तो 2 चिल्ड्रन प्लस मदर डिवाइडेड बाय 350 kg। एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर दे रखा है, तो 2 चिल्ड्रन प्लस फादर डिवाइडेड बाय 3 विल बी 52 kg, ये दे रखा है। द वेट ऑफ द फादर अगर 60 kg है तो दिस इज गिवन, तो हमें वेट ऑफ मदर निकालना है, M निकालना है हमें। तो फॉर्मूला से सिंपली 2C प्लस M, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 150 आ जाएगा। एंड दिस वुड बी वन इक्वेशन जो बन जाएगी यहाँ पे। अगर सेकेंड फॉर्मूला से जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फादर का सपोज 156 माइनस 2C, हमें ये वैल्यू मिलेगी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें चिल्ड्रन के लिए 2C की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2C की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे 2C की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमें M निकालना है। तो इक्वेशन 1 से हमें यहाँ पे M मिल जाएगा, तो 150 माइनस 96, 2C क्योंकि 96 है, तो मदर्स वेट इज 54 kgs। Then average age of a teacher or 3 students है 20 years. So teacher plus the age of 3 students divided by 4 is equal to 20. If all the 3 students they are of same age, तो age of all the students is same और difference between the age of teacher and each student is 20 years. तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स की एज सेम है तो वो हमने x अज्यूम कर ली और डिफरेंस दे रखा है टीचर की एज और हर स्टूडेंट, क्योंकि एज सेम है तो वो सेम रहेगा, t माइनस एक्स इज 20। तो यहाँ से हमें t+3s इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 80 आ जाएगी। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, t माइनस एक्स दे रखा है, तो x की विल बी t-20। यहाँ से अगर नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे तो इसको पुट कर देंगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में बचा जो कि t है, जो हमें निकालना भी है, दैट इज द एज ऑफ टीचर। तो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो विल गेट द एज ऑफ टीचर एज 35 ईयर्स। नाउ हेयर ये टेबल फॉर्म में डेटा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। नाउ दिस इज, हमें ऑलरेडी एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, ये इंग्लिश में है ये हिंदी में है, गर्ल्स के लिए ये है बॉयज के लिए है, और ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालना है हमें हिंदी के लिए। सो स्कोर ऑफ ऑल गर्ल्स इन इंग्लिश डिवाइडेड बाय जी, तो जी इज सिग्निफाइंग टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो 9 हमें ये वैल्यू दिखा रहा है। तो एवरेज मार्क्स इंग्लिश में है, एवरेज मार्क्स बॉयज के इंग्लिश में 8 है, ये 8 फिगर। सिमिलरली हिंदी के लिए ये हमने इक्वेशंस लिखी, तो स्कोर ऑफ ऑल इन इंग्लिश आ जाएगा, हमें ऑल निकालना है। तो 8.8 दे रखा है इंग्लिश के लिए, ऑल तो मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के नंबर हम ऐड करेंगे, तो इसको इससे हमें ये एक इक्वेशन मिलती है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा गर्ल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ बीस बॉयज, और
सिमिलरली हिंदी सब्जेक्ट के लिए अगर हम करेंगे तो सिमिलरली सेम जैसे हमने इंग्लिश के लिए किया है, स्कोर ऑफ गर्ल्स हिंदी में कितना है, स्कोर ऑफ बॉयज कितना है, वो हमें इससे मिल जाएगा क्योंकि हमें एवरेजेस दे रखी हैं टेबल में। एक्स हमें निकालना है कि टोटल हिंदी सब्जेक्ट में कितना है बॉयज और गर्ल्स का मिला के। तो एक्स आ जाएगा ऊपर वाली जो हमने पार्ट सॉल्व किया उस इक्वेशन में जो लास्ट में मिली थी G = 4B, इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ बी की वैल्यूज बचेंगी, तो बी एंड में कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो हमें निकालनी थी टेबल में। 7.8 इज द आंसर, ए ऑप्शन। So here, average score of a batsman after his 50th innings बोला है is 46.4, तो total 50 innings का average हमें दे रखा है। इसको इक्वेशन में हम लिखेंगे तो this will be in this manner, total score 50 innings में divided by 50, 46.4। 60th inning का हमें दे रखा है, after 60th inning average score increases by 2.6, so इस वाले फिगर में 2.6 ऐड करेंगे तो न्यू एवरेज मिल जाएगा 60 innings के बाद। सो हमें निकालना है 60th, व्हाट वाज द एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स, तो 50th के बाद दे रखा है और 60th के बाद दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो लास्ट 10 हमें निकालना है, वो हमें मिल जाएगा सिंपली। सो इट वुड बी 62, वही एवरेज के फॉर्मूला में यहाँ पे, यहाँ हमने कॉमन लेके तो ये थोड़ा कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाता है। Then in a class there are three groups, A, B, C groups हैं एक ही क्लास के अंदर। If one student from group A, two students from group B, ग्रुप सी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है पूरी एवरेज ऑफ क्लास को, मतलब एवरेज कैसे चेंज होगा, व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो ग्रुप के अंदर चेंजेस हो रहे हैं बट क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स है उसमें कोई बाहर से नया स्टूडेंट नहीं आया है, इसलिए एवरेज सेम रहेगा। Now there are two classes A and B having 25 and 30 students, तो इसको मैंने टेबल फॉर्मेट में लिख दिया है। टोटल स्टूडेंट्स A में 25 हैं, B में 30 हैं। क्लास A में हाई स्कोर 21 है, B में 30 और लोवेस्ट स्कोर देकर रखा है 17 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्लास A से 4 स्टूडेंट्स क्लास B में शिफ्ट हो जाते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों ट्रू है नहीं है। तो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सपोज भी करते हैं कि हाईएस्ट स्कोर जो है ए का वो लोअर है टू दी हाईएस्ट स्कोर इन बी, तो अगर हाईएस्ट स्कोरर स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड 4 स्टूडेंट्स, तो तब भी एवरेज ऑफ बी डेफिनेटली डिक्लाइन होगा ही होगा, क्योंकि 30 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं। और सेकंड स्टेटमेंट एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, तो इसमें हमें ये नहीं दे रखा है कि कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे, हाईएस्ट स्कोरर जाएंगे कि लोएस्ट स्कोरर जाएंगे, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली वाला एस्पेक्ट नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा। अगर सपोज करो जो हाईएस्ट स्कोर वाले शिफ्ट हो रहे हैं तो एवरेज डिक्लाइन होगा, बट अगर लोअर स्कोर वाले शिफ्ट हो रहे हैं ए से बी में तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि इट विल इंक्रीज।